حضرت شیخ ابو نصر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے والد سے بلسناد بیان کیا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے کہ یہ دعا سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ایک دعا کے متعلق انہوں نے روایت فرمائی ہے کہ یہ دعا حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی مقررہ ساعت میں مشرق سے مغرب تک کسی چیز کے لیے بھی اگر دعا کی جائے تو ضرور قبول ہوگی۔ جمعہ کے دن جو فضیلت والی گھڑی ہے جس کے تعلق سے مختلف روایتیں آپ نے سماعت فرمائی، فرمایا کہ اس وقت میں مشرق سے مغرب تک یعنی دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک فرمایا کسی چیز کے لیے بھی اگر دعا کی جائے تو ضرور قبول ہوگی۔ وہ دعا کیا ہے؟ تو فرماتے کہ وہ دعا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحانک لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ نبی علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ یہ مجھ پر یہ دعا نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے کہ اس وقت میں یہ دعا مانگو، اس وقت میں یہ دعا مانگو کہ سبحانک لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ کتاب فیضان شریعت کے حوالے سے درس آپ لوگ سن رہے ہیں، اگر آپ کو چاہیے تو آپ بعد میں بھی اس میں دیکھ کر کے اس کو یاد کر سکتے ہیں، اپنے موبائل میں اس کا فوٹو نکال سکتے ہیں، اس کو زیروکس کروا سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ جو سنتے ہیں اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے، جو ہم پڑھتے ہیں اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے۔ جب سمجھ میں آ جائے تو اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ حضرت صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ جمعہ کے روز امام کے منبر پر بیٹھنے کے وقت جو بھی شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر یہ پڑھے گا، کب؟ جب خطیب یعنی امام منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جب امام منبر پر تشریف رکھیں اس وقت جو شخص جو مسلمان یہ کلمات پڑھ لے تو اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ فرمایا کہ کہتا ہے تو اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہ کلمات جو شخص بھی کہتا ہے تو فرمایا کہ اس کو بخش دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے فرمایا کہ میں نے خود یہ سنا ہے کہ رسول عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان جس طریقے سے رمضان دوسرے دنوں پر فضیلت رکھتا ہے اسی طریقے سے جمعہ کا دن باقی دنوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ جیسے ماہ رمضان شریف جو ہے یہ تمام دوسرے مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے کہ اس دن میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، مغفرت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، رحمت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، رمضان شریف میں انتقال کرنے والوں سے قبر کا عذاب اٹھا دیا جاتا ہے، اس کی بخشش فرما دی جاتی ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے، نفل کا ثواب فرد کے برابر عطا کیا جاتا ہے، ایک فرد کا ثواب 70 فرد کے برابر دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ایسے ہی عام دنوں میں ماہ رمضان کے علاوہ عام مہینوں میں جمعہ کی فضیلت ایسے ہی ہے کہ جمعرات کے دن، بدھ کے دن اور اس طرح سے منگل اور پیر کے دن اور اتوار اور سنیچر کے دن جو نیکیاں ہم کرتے ہیں ان تمام نیکیوں کا جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، جو دعائیں ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، مگر فرمایا کہ جمعہ کے دن ایسی مثال ہے جیسے باقی مہینوں پر جمعہ کی مثال رمضان مہینے کی مثال ہے کہ رمضان جمعہ کے دن اجر بڑھا دیے جاتے ہیں، جمعہ کے دن انتقال کرنے والے سے عذاب قبر نہیں ہوا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے جو تو اعمال کے فضیلت بڑھا دی جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں جمعہ کے دن بھی ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کا ایسا اہتمام کریں کہ عید اور بقرہ عید سے بڑھ کر کے اہتمام ہو جائے، اس سے بڑھ کر کے اہتمام ہو جائے، کیونکہ بارہا آپ روایت سنتے آئے ہیں کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ عید کے دن سے بھی بڑا ہے، بقرہ عید کے دن سے بھی بڑا ہے، عاشورے کے دن سے بھی بڑا ہے، تمام دنوں سے بڑا دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسے سید الایام کہا گیا ہے۔
तमाम दिनों का सरदार कहा गया है। इसी तरीके से फरमाते हैं कि सालिहीन में से एक साहब अपने रूहानी अक़वाल व अफ़आल को, अपने रूहानी अक़वाल यानी जो कुछ भी वो बोलते, दीन की बातें, नेकी की बातें, जो कलमात कहते, जो औरात करते, वज़ाइफ करते, ये जो कुछ भी करते, एक अल्लाह के नेक बंदे का ये अमल था। सालिहीन में से एक साहब अपने रूहानी अक़वाल व अफ़आल को, और जो अमल करते, नफल पढ़ते, कुरान पाक की तिलावत करते, रोजे रखते, जो भी अक़वाल व अफ़आल करते, तो अफ़आल को पूरा हफ्ता सिर्फ जुमा के लिए तरतीब देते कि आपकी जुमा को ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। जुमा के दिन के लिए तरतीब देते कि इस चीज को इतना करूंगा, इसको इतना करूंगा, फिर इतने बजे इतना करूंगा, इतने बजे वो करूंगा, उतने बजे वो करूंगा। जुमा के दिन की पूरी तरतीब, पूरी लिस्ट बनाते कि आपकी जुमा को मैं ये नेकी करने का अमाल करूंगा और ये काम करूंगा। इतना एहतमाम करते थे, इस कदर जुमा के दिन का पूरा प्रोग्राम बनाते थे। काश कि आज हम मुसलमानों को ये बातें समझ में आ जाती और हम जुमा के दिन का एहतमाम करते, तो जुमा के दिन न जाने कितनी जो बुराइयां उरूज पर होती हैं और होने वाली बुराइयां हैं वो खुद बखुद दम तोड़ देती, न जाने कितनी बुराइयां खुद बखुद खत्म हो जाती। तो बहरकैफ वो इस तरीके से तरतीब देते कि अब की जुमा को मुझे ये करना है, कि जुमा तमाम सालिहीन के लिए यौमुल मजीद है। जुमा अल्लाह के तमाम नेक बंदों के लिए यौमुल मजीद यानी तरक्की वाला दिन है, बरकत वाला दिन है, अदाफे वाला दिन है, नेकियों में अदाफा कर दिया जाता है, वो दिन है जुमा का दिन जो है। और फरमाया, और जुमा के रोज जो कुछ हासिल होता है वो एक मेयार बन जाता है। जुमा के दिन जो कुछ भी हासिल होता है वो एक मेयार बन जाता है, एक पैमाना बन जाता है, एक वसूल बन जाता है, एक सनद बन जाती है। लोग कहते ना, कोई कारोबारी ताजिर लोग जो होते हैं, तुजार, बिजनेसमैन, तो उनके लिए जब कोई महीना आ जाता है, ये अपना सीजन, उनके कारोबार का कोई सीजन आ जाता है, तेजी का महीना आ जाता है, ये रोजाना धंधा करने वाले, किसी के यहाँ किसी के जुमा के दिन बहुत धंधा उरूज पर, बहुत गर्दी होती है, खूब धंधा होता है, तो जुमा के दिन हफ्ते का जो हफ्ते में एक दिन की कमाई जो होती है, पूरे हफ्ते भर की कमाई पर वो गालिब आ जाती है। बोले यार शनिचर को तो इतना नहीं हुआ, मगर इतवार के दिन इतना जबरदस्त धंधा हुआ कि पूरे हफ्ते का कवर हो गया। तो फरमाया कि इसी तरीके से जुमा का दिन है। जुमा के दिन नेकियां जो होती है उसके अजर को अल्लाह ताला ऐसा बढ़ा देता है, इतना बरकत वाला दिन है कि जुमा के दिन जो नेकियां कर लिया, जैसे हफ्ते में एक दिन जो रोज पर व्यापार रहता है, कारोबार रहता है, उस दिन जिसकी कमाई हो गई, तो बाकी दिनों में अगर कम भी होता है तो उसको तकलीफ नहीं होती, उसको तकलीफ नहीं होती। फरमाया कि ऐसी जुमा जो है ये यौमुल मजीद है, अदाफा और तरक्की का दिन है। और फरमाया कि ये मेयार बन जाता है, और इस तरीके से जिससे बंदे हक को गुज़श्ता हफ्ते के कामों का अंदाजा, बंदे हक जो होते हैं वो गुज़श्ता हफ्ते के कामों का अंदाजा लगा लेते हैं। जुमा के दिन अगर जिसने, जैसे कि मैं आपको मिसाल दे दूं, इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। जुमा के दिन जो फज्र की नमाज में अव्वल सफ में आ गया, फिर जुमा की नमाज में अव्वल सफ में आ गया और पूरे एहतमाम के साथ जुमा की नमाज अदा की, इंशाअल्लाह उसकी असर मगरिब इशा कज़ा नहीं होगी। और जब वो भी अदा कर लेगा तो इंशाअल्लाह उसकी बरकत से पूरे हफ्ते नमाज पढ़ने का जी चाहेगा, उसका दिल चाहेगा। और जिसने जुमा के दिन गफलत का शिकार हो गया, जो लापरवाही कर दी, जिसने सोता रह गया, जैसा कि आमतौर से लोगों में हो जाता है, जुमा बंदी का दिन है, रजा का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो फजर में ही नहीं उठते, यानी उनकी सुबह ही शुरुआत ही गलत हो जाती है, सुबह की बरकत ही हाथ से निकल जाती है। पर मैं पूरा दिन वो मायूसी का शिकार रहता है, महरूमी का शिकार होता है। वो इस तरीके से वो जो है अपने आप को बिल्कुल मायूस महसूस करता है कि जैसा किसी का बहुत बड़ा खसारा, नुकसान हो जाए, तो उसको बज़ाहिर नुकसान तो दिखता नहीं है, मगर अंदरूनी तौर पर, रूहानी तौर पर उसको खुद को इस चीज का एहसास होता है कि आज नुकसान तो हुआ है। जिसने जुमा को भी फजर की नमाज नहीं पढ़ी, जो पढ़ लेता है उसका दिल खुश हो जाता है, फिर वो शौक से जुमा की नमाज का भी एहतमाम करता है और दीगर नमाजों का भी एहतमाम करता है। फरमाया कि यानी जिक्र और वज़ाइफ में कोई कमी ना हो। जुमा के दिन
आमाल में कोई कमी ना होने पाए। जुमा के दिन आमतौर से देखा जाता है बहुत सारे लोग फजर में कम नजर आते हैं, उसी वजह से कि आज छुट्टी के दिन है, खूब लंबा सोते हैं। और कई सारे लोग आम दिनों में सुबह जल्दी भी नहा लेते, कभी 10 बजे 11 बजे 9 बजे भी नहा लेते, चले जाते कहीं जाना रहता। जुमा के दिन वो इंतजार करते हैं, एकदम आए जुमा की अजान के वक्त में नहाने के लिए चलते हैं, नहीं देखते। अल्लाह रहम फरमाए और लोगों को तौफीक अता फरमाए। हम और आप जुमा के दिन जब आते रहे, कभी पौने 1 बजे 1 बजे कभी हो जाता है, अजान होते रहती पहुंचते, तब भी कई लोग वैसे ही बगैर नहाए बैठे रहते, रास्ते में खड़े रहते। पूछो, अरे तैयारी नहीं की, बस जा रहे हैं, नहीं अभी भी जा रहे हैं, बहुत जल्दी कर रहे हैं बेचारे। तो पूरे हफ्ते के लिए वो महरूमी का शिकार हो जाते हैं, उनसे बरकतें उनके हाथ से निकल जाती है। बात ये समझ में नौजवानों को आ नहीं रही है, वो सोच रहे गवर्नमेंट हमको हैरान कर रही है, खुद नहीं देखते कि हम खुद अपने आप को हैरान कर रहे हैं। हम खुद हैरानी परेशानी में मुब्तला कर रहे हैं अपने आप को, अपनी जान को जंजाल में हम खुद फंसा रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए रास्ता इसमें है, हम जब भी मस्जिद में आएंगे, बिलखुसूस जुमा के दिन जब हम आ जाएंगे तो पूरा हफ्ता आने का जी चाहेगा, लेकिन इस एहतमाम के साथ आ जाएंगे, कराहियत के साथ नहीं। अरे यार आज जुमा ना होता तो सोता, और मैं अभी नहीं जाऊंगा तो लोग कहेंगे जुमा भी नहीं पड़ता। ये लोग के कहने के डर के मारे आ गया कपड़ा बदल के, पर मैं उसको वो लज्जत नहीं मिलेगी, वो फजीलत भी अल्लाह ना करे ना मिल पाए। तो इसलिए पूरी तैयारी के साथ एहतमाम के साथ जब आएगा तो उस दिन जो कमाई हो जाएगी पूरे हफ्ते पर भारी हो जाएगी इंशाअल्लाह, पूरे हफ्ते का रोना निकल जाएगा उसका। इसलिए जुमा के दिन एहतमाम के साथ फरमाया कि वो उसमें किसी भी तरह के औराद और वज़ाइफ में कोई जिक्र में कमी ना हो, तो फिर उसके लिए जुमा का दिन और ज्यादा अनवार और बरकत का दिन बन जाता है। जो इस तरीके से करता है तो उसके लिए वाकई जुमा का दिन और अनवार और बरकत का जरिया बन जाता है। अगर उसका जो है तो अगर उसको खो दिया तो तबीयत पर मायूसी और जुल्मत छाई रहती है। अगर जो शख्स जुमा की बरकतों को खो दिया तो खुद उसकी तबीयत और मायूसी सी छाई रहती है, फिर बेबरकती का शिकार अपने आप को समझता है और हो जाता है। इसलिए हम और आप ये चीज पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो भी इसके जरिए से लोग सुन सकें उनसे मेरी गुजारिश ये है कि खुदारा इस पर अमल करें, जुमा का एहतमाम करें। अभी भी हमारा कुछ बहुत बिगड़ा नहीं है, अभी भी वक्त है, अपने आप को संभाल लें। हमारे पास ऐसे थे मौके हैं जिंदगी में। मैंने कल भी बयान में कहा था कि मौत से कोई लड़ सकता नहीं, जिसको लड़ना है जिंदगी से लड़े, जिंदगी के उलझनों से लड़ रहे, हिम्मत ना हारे। और हमारे पास सब हथियार है। जुमा का दिन ये बहुत बरकतों वाला दिन है, इसकी बरकतें अगर अल्लाह करे मिल गई, पूरे हफ्ते की इंशाल्लाह महरूमी से हम बच जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों को समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाह।